हाँ, जय सचिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતો નથી. હારે હો જી પ્યારાજી, હારે હો જી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઊંઘતું નથી. હારે જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાં તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતો નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજી, હીરા મોતી માલાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડો થરતો નથી. રે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હા, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂંટતો નથી. દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ ભીના સૂનો લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, ફિર હો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતો નથી. હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી પ્યારાજી, હારે હો જી પ્યારાજી. જય સચિદાનંદ. Jai Sachidana. Deepakaji, please see my message. Please see my message. Okay. Okay. Come again, what did you? Huh? What did you say? Look at the chat message I just sent. Ah, okay, fine. Be ready with the video. Okay. Monica? Oh no, sorry, Charisma, number 1. દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માઓનો સાક્ષાત માત્ર પણ અહમ ના
दुबे ना दुबा के दुबा के प्रति ना अनुदाय परम शक्ति आपो મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સાધવાર વાણી સાધવાર વર્તન સ્મરણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Anuj, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય એવી શાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Shreya, દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Charisma, હા જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો જીવાત્માથી પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ના किया जाए ना करवाया जाए कि कर्ता के प्रति ना क्या हो गया? Okay, Anuj, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ ફોર્થ કલમ ફોલો કરો ફિફ્થ કલમ third. No, fourth. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ના કરાવાય કે કર્તા પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Shreya, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Anuj, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કર્તા પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Shreya, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસે ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Anuj, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષત્વ પુરુષ જીવિત અગર મૃત્યુ પામેનાનું કોઈનું કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Darsal, Shreya, હે દાદા ભગવાન મન જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. Hey, Deepika ji, three mantra please बुलाइए. नमो वितरागाय નમો વિત્ર ગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાય नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो वज्रायाणम નમો વત્સયાણમ नमो लोये सवसाहुणम નમો લોકે સવસામણમ ऐसो पंच नमकारो એસો પંચનમુક્કારો सर्वपावप्रणशनो સર્વભાવપ્રણસનો मंगलाणं च सर्वेशे મંગળાણં ચ સમર્ચતે परमं हवै मंगलम् પડવમ હવે મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. Hey, Darsal, જય સચ્ચિદાનંદ.
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार का जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। श्रेया, श्रेया स्टडी। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। अनुज, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे जय अच्छे। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अनुज ने आज अच्छा पाठ लिया। ओके श्रेया, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. कंटिन्यू कंटिन्यू। श्रेया कंटिन्यू। दर्शन को नहीं आता है। क्या સેપરેશન પ્રેયર? ના પેલા ત્રણે પૂરું કરી દે ને। હા. સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્યો સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે. મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારું 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે. મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારું વ્યવહાર સુધારશે. દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. वेरी गुड। दक्ष, सेपरेशन प्रेयर हिंदी। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आपले गोल दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल और रिलेटिव है। मंथन, दर्शन बोलो, अरे सिखाड़ू जो है ने। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, દર્શન જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દર્શન રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દર્શન ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी क्या जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, दो स्कूल वाले हैं, 2 वेकेशन वाले। ओके दरअसल हाँ, क्या चल रहा है स्कूलों में? स्कूल में आप रिपोर्टर अभी नहीं अभी तो बैठते? स्कूल में जो हमारा नेक्स्ट वेकेशन आने वाला है, उसके बाद जो हमारी एग्जाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। अभी से एग्जाम होगा?
नहीं, हमारा जो अभी 29 को हमारा जो दूसरा वेकेशन होगा उसके बाद 15 डेज बाद एग्जाम होगी, इसलिए उसकी तैयारी करवा रहे हैं। कब है वेकेशन होगा? वेकेशन हाँ 1 मई को स्टार्ट हो रहा है। ओ माय, तो अभी क्या पढ़ाते हैं उन लोग? अभी वो लोग जो एग्जाम, जो वो वेकेशन खत्म होगा उसके बाद जो एग्जाम आने वाली है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। वापिस एग्जाम लेगा? हाँ, अभी मेरा दूसरा स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ ये है, नेक्स्ट इसलिए स्टैंडर्ड का। हाँ, तो अभी तो एक ही महीना हुआ ना स्टडी का। हाँ अभी 1 महीना हुआ, इसलिए सीबीएसई में जल्दी होता है, इसलिए मेरा ओके, जल्दी आप है। उसका कितना सब्जेक्ट है? 6। 6 सब्जेक्ट। तो आपको एक दफा रिवीजन करने का है, 2 दफा रिवीजन करने का है? हाँ, एक दफा रिवीजन करने का है कि 2 दफा रिवीजन करने का अभी तो एक दफा। है? एक ही क्यों? एक महीना में एक ही बार? ओके, अभी मंथन। फिर वेकेशन में करूंगा। अच्छा, ओके, मंथन। अभी वो एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, वो वेकेशन के बाद। आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? 5th। 5th? हाँ। अव्यय? नहीं, दक्ष। जय सच्चिदानंद। अभी हमें स्कूल में चैप्टर करवा रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट में? सारे सब्जेक्ट में हमारे लेसन चालू करवा दिए। सब में हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ गए। तो आप एक्स्ट्रा स्टडी कितना किया 3 दिन में? अभी मैं डेली 45 मिनट्स 1 hour दिस मच टाइम। ओके, वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट को रिपोर्ट में ले भेजो? ओके। हाँ। ओके, तो अभी वेकेशन वाले की बात करेंगे। दर्शना, आप राजस्थान पहुंच गए? हाँ। ओ, वेरी गुड। तो अभी वेकेशन का गोल क्या है श्रेया? वेकेशन का गोल ये है कि मुझको तीनों गोल में सिंसियर रहना है वही और कुछ एक्स्ट्रा नहीं एक्स, करने का है, कुछ पढ़ने का हाँ नहीं, कुछ मस्ती नहीं एक्स्ट्रा करने का है? वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, मैथ्स और हिंदी का स्पेशली। और अभी गुजराती खत्म हो गया ना? हाँ और रिजल्ट आ गया? नहीं, वो 28 अप्रैल को है। 28 अप्रैल। ओके। दर्शना, आपका क्या गोल है? मेरा गोल है कि मुझे हर रोज सत्साधन करना है और मुझे इंग्लिश में चैप्टर रीडिंग करनी, पर वो मैंने आज नहीं। इंग्लिश में चैप्टर रीडिंग करके क्या करेंगे? वोकैबुलरी का वोकैबुलरी। अभी सपोज एक चैप्टर रीड किया, बाद में क्या करने का है? क्या बोला? उसकी समरी लिखना है। ओके, तो हमको भेजना। ओके, सबने को समरी भेजना। ओके, और समरी भेज के जो नया वोकेबुलरी वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करने का। ओके। हाँ। तो बस एक ही करने का, वही करने का, इंग्लिश ही करने का है? हाँ, और मस्ती कितना करने का है? ज्यादा करना है। पूरा ज्यादा नहीं। और पूरा मस्ती करने का। अभी मम्मी से झगड़ा शुरू कर दिया क्या, कि दादी की बात से झगड़ा करते हैं? नहीं, कर रही है। हैं? नहीं, दादी नहीं, माँ नहीं, के दादी माँ से करने का है कि मम्मी से करने का है? इससे नहीं है। ओ, क्या बात है। ओके, मम्मी हमको रिपोर्ट मांगता है एवरीडे और ना बोलती है किसने। ओ, पापा है ना, पापा जो फ्री है, पापा के साथ झगड़ा करो ना। हाँ? हैं? पीयूष, आपको अभी आपका टर्न है। दर्शना एवरीडे मम्मी को परेशान करती थी, अभी से हमने बोला कि पापा को करो अभी।
मेरे Okay. ऑनलाइन वर्क में चलता रहता है बैकग्राउंड में इनका। नहीं नहीं, अभी वो बैक आप फोरग्राउंड में, अभी मम्मी बैकग्राउंड में आ गई, आप फोरग्राउंड में आने का है। चलेगा। ओके, खुशी आपका क्या गोल है वेकेशन में? वैकेशन नहीं है, स्कूल स्टार्ट हो गई आज से। तो क्या हो गया रियली? ओके, तो ओके, अब यही जय सच्चिदानंद। मेरी वैकेशन नहीं चल रही है, बट स्कूल वालों ने थोड़ी छुट्टियां दे दी था वैकेशन। स्कूल वालों ने क्या बताया? स्कूल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी थोड़ी दिन छुट्टी दे दी, तो वैकेशन नहीं चल रही है। तो अभी तो स्कूल चालू होगा अभी? स्कूल चालू हुआ है, पर वेडनेसडे से हो रहा है। ओके, वेडनेसडे। इताक से आपको तो वेट, आपको एक मिनट, अभी रिजल्ट आ गया? हाँ आ गया। कैसा आया? 87। 87। किसमें कम आया? मैथ्स में आया और कंप्यूटर के प्रैक्टिकल और में। तो हम बोल सकते थे आपको मैथ में आया, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। आपको क्या करने का है बड़े होके? साइंस करने का है कि नो, आपको तो साइंस करने का है, लेने का है, राइट? हाँ तो अभी मैथ को बहुत अभी बेस नहीं होगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, सो यू बेटर लर्न प्रॉपर। खुशी किधर चली गई? इतक से आपका रिजल्ट आ गया 87 इज गुड, ओके, बट मैथ में 100% यू मस्ट एम फॉर 100%। अब जो साइंस करने वाले हैं तो इतक से नहीं, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ओके, तो कितना दिन छुट्टी है? हाँ, छुट्टी कितना दिन है? वैकेशन तो है मई तक, मई के एंडिंग तक। तो क्या वेकेशन का गोल क्या है? अभी तो गोल मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं कल बताऊं। यस, कल बताना। ओके, तो आज एक हम वीडियो देखेंगे, ओके, बाद में सब चर्चा करेगा बिहारी दादा ने साहब। ओके, दीपिका जी रेडी? Yeah, moment. तो जिसके पास पेपर ना है, नोट्स लिखना, जो कुछ अच्छा वर्ड्स और कुछ सेंटेंस आता है ना, तो प्लीज रखना। खुशी, आपका रिजल्ट आ गया? नहीं आया, ओके, कब आने वाला है? डेट नहीं आई अब तक। ओके, Can you all see? यस यस, एक मिनट दीपिका दा, ये किसका पिक्चर है मालूम है? लेफ्ट में किसको मालूम है? दरअसल को मालूम है, इताक्षी भाई सबको मालूम है, क्या बात है। ओके जी, इताक्षी भाई कौन है ये? डॉक्टर आम्बेडकर। ओके, वेरी गुड। ओके, दीपक दादा। ये गौरव गाथा उन महापुरुष की है जो स्कूल में गए तो बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर नहीं मिला। क्लास में बाहर खड़ा होना पड़ता था, वहीं से पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार प्यासे रह जाते थे क्योंकि स्कूल में चपरासी नहीं आते थे तो पानी पीने को नहीं मिलता था। कोई इनके लिए नल तक चलाना पसंद नहीं करता था। चपरासी आते थे तो नल चला देते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन जिस दिन चपरासी नहीं, उस दिन पानी नहीं। आगे चलकर एक आर्टिकल में लिखते हैं, नो पियोन नो वाटर। ये गौरव गाथा उन महापुरुष की है जिन्होंने बचपन में अछूत होना क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, सबका सामना कर लिया और ठान लिया कि सबके विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करूंगा। आगे चलकर दुनिया के महान विद्वान बने। 2.5 लाख के करीब किताबें उन्होंने पढ़ी। 64 सब्जेक्ट्स का उनको ज्ञान मिला। 9 भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। 32 से ज्यादा डिग्रीज उन्होंने हासिल की और वो डॉक्टर ऑफ साइंस, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए। मैं बात कर रहा हूं दी वन एंड ओनली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारत के संविधान के निर्माता बने। 1891 14 अप्रैल को 1891 में इनका जन्म हुआ आम्बडवे गांव में।
और जब ये स्कूल जाते थे तो इनके सरनेम की वजह से बहुत लोग इनको परेशान करते थे, तो इनके टीचर ने कहा कि आप आम्बेडवे से ही अपना सरनेम क्यों नहीं बना लेते। आम्बेडकर नाम जो है इन्हें उपनाम के रूप में मिल गया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर सोसाइटी के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए लगातार काम किया। 5 छोटी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। लाइफ लेसन्स मिलते हैं हमें उनकी कहानियों से। आइए आपको सुनाता हूं। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मैथ्स की परीक्षा दे रहे थे, 10 सवाल उनके क्वेश्चन पेपर में थे, 10 में से कोई 5 सॉल्व करने थे। डॉक्टर बाबा साहेब को सबके जवाब मालूम थे, उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिए और नीचे एक नोट लिख दिया कि 5 जो सही लगे उनको आप कंसिडर कर लेना। टीचर वो जो इनकी आंसर शीट थी उसे लेकर के क्लास में आए, सबको दिखाया, इनको लगा कि शायद डांटेंगे। टीचर ने कहा कि देखो वैसे तो ये नियम के ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपकी उस पकड़ को सलाम करता हूं क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझ गए हो, इसीलिए आपने 10 के 10 सवालों के सही जवाब दे दिए और इनके लिए बाकायदा तालियां बजवाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की ये छोटी सी कहानी पहली लर्निंग देती है लाइफ में डीप एनालिसिस होना, गहरा विश्लेषण करना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन का बहुत जरूरी है। हम कई बार सतही बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जब तक हमें किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा किस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पीछे भी सोच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की थी। उनकी एक बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उसके बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन कहा गया, उसे इंडिया भेजा क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में इंडियन करेंसी, हमारी जो करेंसी थी उसकी हालत बहुत गिरती जा रही थी। डॉक्टर आम्बेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए। अपनी बुक के बेसिस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसी बैंक जो है हमें बनानी होगी और बाद में उनके सुझावों को माना गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये दूसरा किस्सा सिखाता है कि लाइफ में विजन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा किस्सा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का उनके किताबी प्रेम को लेकर के। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसका नाम था राजगृह। उसमें 50,000 से ज्यादा बुक्स उन्होंने इकट्ठी की थी। उनसे कोई कहता था कि मुझे किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो वो उधार नहीं देते कोई किताब, वो कहते थे कि मेरी लाइब्रेरी में आइए, वहां आकर के आप अच्छे से उस किताब को पढ़िए। बाबा साहेब के सहयोगी ने किस्सा शेयर किया कि दिल्ली में हम गए थे और पुरानी दिल्ली के उस एरिया में मैं लेकर के गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, जहां किताबें मिला करती थी, पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा था। वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि लंच का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए भोजन के लिए, फटाफट चलते हैं, लेकिन वो रुके रहे। उनके वहां पहुंचने की खबर लोगों को मिल गई तो लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, इतने सारे लोग आ गए, लेकिन उस सब के बीच में भी लगभग उन्होंने 20 से 24 किताबें अपने लिए खरीद ली। इतना उन्हें किताबों से प्रेम था। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर ही हमारे संविधान का भी निर्माण किया और लोगों तक उनका हक मिले इस बात को सुनिश्चित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लाइफ लेसन है कि नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, रिलैक्सेशन के लिए क्या करूं, तो डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट की छोड़िए, दूसरे की पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं हम इंसानों की। 1943 के लगभग की बात है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब को वाइसराय काउंसिल में जो है शामिल किया गया था और वाइसराय काउंसिल में उन्हें श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। साथ ही पीडब्ल्यूडी का भी उनको जिम्मा दिया गया था। ये जो डिपार्टमेंट था इसका बजट बहुत मोटा था और ठेकेदारों में इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की होड़ मच गई थी। तो इसी लालच में दिल्ली का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने अपने बेटे को बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव के पास में भेजा और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, 20 से 25%, 50% तक का कमीशन जो है हो जाएगा, ऐसा वैसा उसने बोला। और यशवंत जी भी थोड़ा लालच में आ गए अपने पिताजी के पास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास जाकर के कहने लगे। तो उन्होंने डांटा और कहा कि मैं अपने बेटे के उद्धार के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं समाज के उद्धार के लिए यहाँ आया हूँ। ये चौथी जो लर्निंग है आज के लीडर्स को भी लेनी चाहिए, सोसाइटी में हर व्यक्ति को लेनी चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। और 5वां किस्सा बड़ा ही छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देता है। यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। वहां की जो लाइब्रेरी थी उसके खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे। लाइब्रेरी का समय समाप्त हो जाता था, उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते थे पियोन से कि थोड़ी देर और मुझे बैठने दो। तो एक दिन पियोन ने पूछ लिया कि क्या चाहते हो लाइफ से, तुम मौज मस्ती करने नहीं जाते, पार्टी करने नहीं जाते? देखो बाकी बच्चों को पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि मैं अगर मस्ती करने चला गया तो वहां मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लोगों का उत्थान करना है।
ये पांचवा जो किस्सा है ये शेयर करता है लर्निंग सबसे बड़ा लाइफ लेसन कि हमें सबका ख्याल रखना आना चाहिए, सबके लिए केयर करने की जो फीलिंग है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और जाते जाते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 3 बड़ी कमाल की बातें। सबसे पहली, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो कभी गलत काम नहीं करता है। दूसरी, अपने भाग्य की जगह अपनी मेहनत को, अपनी मजबूती को ज्यादा विश्वास करना शुरू कीजिए। और तीसरी, जिंदगी लंबी होने की जगह महान होनी चाहिए। जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया उन्होंने छू लिया आसमान। भारत रत्न, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को शत शत नमन। जय सच्चिदानंद। क्विकली एक एक कुछ आपको क्या ग्रहण किया? शुक्रिया। देखने का नहीं, नहीं, नो 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 नो, जो याद है वो बोलो। नहीं, सुनाई मुझको नहीं ये देता है। ख्याल है मुझको ये ख्याल आया कि हमको हमारी नॉलेज को गेन करना चाहिए और सबकी देखभाल भी करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। दरअसल मंथन, हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे इसमें यह पता चला कि हमें कभी लालच में नहीं आना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। दक्ष, जय सच्चिदानंद। मुझे ये समझ में आया कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर रहना चाहिए। ओके, तो आप 45 मिनट से 1 घंटा बढ़ा दो टाइम होगा तो। अब ये हाँ, मैंने ये गेन किया कि मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए और किताबें पढ़ना चाहिए। दरअसल खुशहाल, मैं दर्शना, अभी हाँ बोलो, खुशहाल बोलो। मैं अभी आया, मुझे नहीं पता। ओके, दर्शना। हाँ, लाइफ में होना बहुत जरूरी है और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कितना ऑनेस्ट है? हिताक्षी बा, हिताक्षी बा, मुझे ये तरह की चीज को जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन महान होना चाहिए। महान तो क्या करेंगे महान में? आप जरा कल बताना, एटलीस्ट वेकेशन में क्या महान बनेगा वो बताना कल। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। हम फ्री होते हैं तब हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और उनका जन्म 1881 को हुआ था। ओके, वेरी गुड। ओके, ये जरा कुछ थोड़ा बातें करो और बच्चों के साथ ये दादा। बोलो क्या बातें करेंगे? दर्शना, क्या बातें करें? कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानने की इच्छा है तो बात करो। नहीं, आप ऐसे बात करो, बच्चे लोग को कुछ क्वेश्चन नहीं करे। आप थोड़ा, आपने सुना उसमें से थोड़ा आप बताइए ना। हिंदी में बोलो, गुजराती में? हिंदी, हिंदी, हिंदी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो, उनकी सोच बहुत ही महान थी। अभी ये जो ज्ञातियों का रिजर्वेशन चल रहा है, जातियों का जो रिजर्वेशन चल रहा है वो सिर्फ 10 साल रखने में ही वो मंजूर हुए थे। 10 साल के लिए ही जो लोग अछूत है, जो लोग बैकवर्ड है, उनको आगे लाने के लिए ये 10 साल के लिए
अंबेडकर जी और गांधी जी ने साथ में 10 साल के लिए ही ये रखने की उनकी इच्छा थी, लेकिन ये ज्ञाति प्रथा, ये जो भी है जात पात ज्ञाति प्रथा, वो अभी के जो नेता है वो नेताओं ने चालू रखी हुई है। वो अपना लाभ लेने के लिए, और अंबेडकर जी इतने महान थे, बचपन से ही बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने अभ्यास किया है। आप लोगों ने सुना होगा, वो अस्पृश्य कहलाते थे, मतलब कि क्लास में भी कभी कभी बैठने नहीं दिए जाते थे। जो आम बच्चे पानी पीते थे, वहां से वो पानी भी नहीं पी सकते थे। वो प्यून स्पेशल आए और वो नल खोल के देवे तब वो पी सकते थे। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में अभ्यास करके बहुत सारे पढ़े, वो परदेश में जाके पढ़े हैं। और हमारा ये जो संविधान है, वो संविधान रचयिता में वो मेन थे। संविधान रचने के लिए बहुत सारी कमेटी बनी हुई थी, लेकिन इसमें ये मेन थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये भारत का संविधान की रचना की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीपकांत जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, ये सुनने के बाद आप लोगों ने क्या डिसाइड किया अपने लिए? अच्छी अच्छी बातें तो बोली, आप लोग के लाइफ में आपको क्या करना है, इसके इनके एग्जाम्पल से आपको क्या करना है? व्हाट इज योर रेजोल्यूशन? आपने क्या अपने लिए तय किया? वो तो ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन वो तो उनको फायदा हुआ ना। अब आपको कैसे, क्या फायदा होगा क्या करने से? हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। उसे क्या इनकी लाइफ में से वो पढ़ाई में नहीं है? इनकी लाइफ में से क्या सीखा आपने और क्या पढ़ाई तय किया? चाहिए। हाँ, पढ़ाई में सिंसियर रहना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, वो तो आपने बाजू पे छोड़ दी। ऑनेस्ट रहना चाहिए। हाँ, ऑनेस्ट रहना चाहिए। नहीं हमारा जीवन महान होना चाहिए। नहीं हमें दूसरों की देखभाल करनी है। नहीं मैं बोलूं? ओके, दिया। मैं मेरे बेटे का कल्याण के लिए नहीं आया हूँ, मैं समग्र देश का कल्याण करने के लिए मेरा जन्म है। ये अच्छा है, लेकिन मूल बात उनकी जो है ना, हाँ, he was a voracious reader. Do you understand the importance of reading? पढ़ने का। किताबें, कितनी किताबें थी? 50,000 प्लस किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में। किसी सबको दिखाने के लिए? नहीं, पढ़ने सिर्फ इकट्ठा करने के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने तो के उन्होंने लिए। पढ़ी थी। आपने कितनी किताब पढ़ी? उन्होंने तो पूरे जीवन में 2.5 लाख किताब पढ़ी। 2.5 लाख। आप 250 भी किताब पढ़ने का तय करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी तो कोई बोलता नहीं है पढ़ना है मुझे करके। श्रेया, आपने कितना कितना बुक्स अभी तक रीड किया? 6 कितना? 600।
नहीं 6 Six? 7 हाँ That's all? अभी तक आपकी जिंदगी में 6 ही किया? मैंने अभी से रीडिंग शुरू किया है फिर से, तो अभी नई बुक में चालू करूँ। देखो, वट एवर इज डन सो डन, इट इज अ गुड एग्जाम्पल। हमने अब तक बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन जब तक हम हमारे लिए तय नहीं करते, हम पढ़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। पढ़ना इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा मुझे बहुत ज्ञान अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जित करने का एक सोर्स या उसका क्या बोले, वो जहां से मिल सकता है वो किताबें पढ़ के। आपने कितनी किताबें पढ़ी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो आई विल से लाइक 6th and 7th स्टैंडर्ड तक जो भी है ना, आपको अभी 2 साल है। अंडर 7th स्टैंडर्ड कौन है? रीताक्षी बा कौन से स्टैंडर्ड में है? मैं भी 8th में हूँ। 8th में हो गया ना, तो अभी आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर आप कुछ पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। स्टिया, हाँ विच स्टैंडर्ड यू गॉन टू विच स्टैंडर्ड? अभी मैं 7th में आऊंगी। समझ में आए? देखो बेटे, एक ही बात है, आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ना यानी वो टेक्निकल किताब या पढ़ने वो नहीं, स्टोरी बुक पढ़ो, सभी लैंग्वेज। या हमने बताया था, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, एटलीस्ट दोज आर इन गुजरात, तो गुजराती आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो मराठी पढ़ो आप, ये जो महाराष्ट्र में है वो, दर्शना, खुशहाल, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। समझ में आया? और जो उसमें है ना, चेन्नई में है, तो हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। समझ में आया? हाँ। ये आप कैसे भी करके पढ़े तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ चलो, किसने डिसाइड किया? क्विक, पढ़ेंगे हम करके, मुझे पढ़ना है। तो सीता की बात तो सोचती है अभी, दर्शना भी सोचती है। दक्ष, हाँ, तो मम्मी कहते तो श्रिया तो बोलती नहीं है। देखो, दक्ष ने 1 बोला, किसी ने 5 बोला, दक्ष ने 5 बोला, दर्शन ने तो कुछ विशाल ने 1 करना ही बोला, नहीं है, बस 2 बहुत बोला। बोलने पर हाथ ऊंचा किया, बहुत मुश्किल से, बहुत दुखता है हाथ ऊंचा करने के लिए। अब ये तो ये खिड़की का बंद करके बैठ गया। आप ये सोचो और प्लान, बाहर खाने के लिए प्लान करते हैं कि नहीं? एवरी डे, तो राइट दर्शना? उसके लिए प्लानिंग होता है, तो इसके लिए प्लानिंग कौन करेगा? आई बिलीव अनलेस, मैंने ये देखा है कि रजनी दादा, अमेरिका का जो एकेडमिक कैरिकुलम जो है ना, उसमें किताब पढ़ने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखा है। कंपल्सरी इन एवरी वीक उनको एक किताब पढ़नी होती है, और उसका प्रेसी 1 पेज अकाउंट उनको देना होता है, ऐसा मैंने सुना। या और वेकेशन में मिनिमम 4 बुक्स जो उन लोग असाइन करते थे। And I believe they have 3 months vacation, right? Almost like 2.5 to 3 months. Yeah. बोलो, but then अभी आप तय करो, कौन आपके लिए गार्डियन, कौन है आपका? आप जब बैठते हैं तो डैडी मम्मी कोई बैठते नहीं है ना आपके साथ? श्रेया, डैडी मम्मी है आपके पास? नहीं है। अब तो उन्होंने नोट किया, मम्मा ने नोट किया? नहीं किया। वो किताब ही नहीं रखते तो लिखने के लिए। दरअसल मंथन के डैडी मम्मी नहीं है। दक्ष, मम्मा है? नहीं। कौन, किसने लिखा आपके पीछे? कौन? खुशी भी अकेली बैठी है, उनकी गार्डियन बड़ी सी दीदी भी नहीं है।
समझ में आया? कुछ नहीं है अदर, ये आप लोग नहीं करते, मैंने देख लिया। सुपर ब्रेन योगा करने बोला, किसने किया आज? किसने नहीं किया? चलो आज किसने नहीं किया बोलो। प्रकाश नहीं जी, बोलो। सूर्य नमस्कार किसने नहीं किया? वेकेशन में, और ये लोग करते नहीं है, ये लोग क्या करेंगे? दादा मैंने सब किया है। हाँ, दादा मैंने सारी एक्सरसाइज करी है। जिसने किया है उसके लिए तो हमारा आशीर्वाद है, और जो जिन्होंने नहीं किया उनको करने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन करते नहीं है तो मजा करना है। अरे इसका बेनिफिट आपको, रनिंग दादा, आप इनकी हेल्थ के बारे में क्या बोलते हैं? ही स्टिल डूइंग सूर्य नमस्कार बोलो, एंड सुपर ब्रेन योगा दोनों करते हैं। समझ में आया? ये दो चीज कंपल्सरी कर देना। लाइफ टाइम कंपल्सरी है। ओके, आपने डॉक्टर ललिता जी को कुछ बोलने का है? प्लीज। I, Jai Sachidanand. I just want to make a suggestion for the children. One, when my kids were going to school, they had reading assignments for the summer. They had so many books that they had to complete and write book reports about when they came back to school the next term. That was one. Two, when I was in India, I remember the really smart kids got the books for the next year and studied that during the summer so that they were familiar with the subject when they started. You know, it was not all new to them. That was just what I wanted to throw in the hat for the discussion. Thank you. No, that is good also. You know what happened, like when we were with our granddaughter, if you Mhm. study on the 4th grade, then I used to do maths with her on the 5th grade, like 6th grade, like that all the time while we were there. Right, right. So because she wanted to be very proficient in math. So, you know, that was a good chance for her to catch on. And like Darshana vocabulary be, you know, my granddaughter, we used to work on vocabulary too. So, सब मिल गया अभी, कल ये सोचो, okay? And tomorrow we'll discuss more, okay? मम्मी, ये, नॉट जस्ट वन लैंग्वेज, इंग्लिश अकेला नहीं, मैंने बताया वैसे हिंदी नेशनल लैंग्वेज एंड योर लोकल स्टेट लैंग्वेज, 3 का फोकस करो आप। okay? समझ गए? ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो जय कल सच्चिदानंद। ये मूवी वापस देखो, वीडियो, okay? Or we'll talk more about it, okay? The 5 and आपका, 3 points, 5 points and 3 points. yeah, and if possible, bring your दर्शना, आपको अभी पापा को लेके आना कल, साथ में वीडियो देख के, रेया मम्मी को, दरअसल मम्मी को, हिताक्षी मम्मी को, खुशी, सबको लेके आना, पापा मम्मी बड़ी दीदी सबको, ओके? जय सच्चिदानंद।